یہ کہانی ہے حسن سلیم اور عائشہ کی محبت کی، جو جہلم کے علاقے ڈومیلی کے رہائشی تھے۔ حسن سلیم پروفیشن اور کاروبار سے ایک موٹر مکینک تھا۔ حسن سلیم عائشہ کے گھر موٹر کی مرمت کے لیے جاتا ہے۔ عائشہ کے والد بقایا بل ادھار کی صورت میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتر آپ دا کارڈ دیتی جا، کل نو لوڑ پائے گی تینوں بلا لیں گے تے پیسے تینوں بھیج دیاں گے۔ نوجوان اپنا کارڈ چھوڑ کر آتا ہے اور اطلاعات یہ کہ ابھی وہ دکان پر نہیں پہنچا ہوتا تو ایک خاتون کا میسج آن ٹپکتا ہے۔ وہ خاتون اور کوئی نہیں تھی، وہ خاتون عائشہ تھی، اسی شخص کی بیٹی تھی جس کے گھر میں موٹر ٹھیک کر کے آیا تھا۔ بعد میں پتا چلتا ہے کہ عائشہ اور حسن سلیم دور کے رشتہ دار بھی ہیں۔ جہلم کے علاقے ڈومیلی سے ان کا تعلق ہے اور ان کے گاؤں بھی کچھ فاصلے پر موجود ہیں۔ پھر چلتی ہے محبت کی ہوا، اور یہ محبت کی ہوا ایسی چلتی ہے کہ بغاوت پر مجبور کر دیتی ہے۔ بغاوت پر مجبور جب ہوتے ہیں تو پھر ملاقات بھی ضروری ہے۔ حسن سلیم ملاقات کے لیے عائشہ کے ہاں جاتا ہے، گھر سے باہر، اور اسی ملاقات کا علم عائشہ کے عزیز و اقارب کو ہو جاتا ہے۔ ملاقات کے دوران ہی ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جا وہ جا۔ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی نے جہلم سے فرار ہو کر لاہور جا کر بیریا ٹاؤن میں پناہ لیا اور نکاح کر لیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق لڑکے اور لڑکی کو لڑکی کے ذریعے اعتماد میں لے کر سرائے عالمگیر بلایا جاتا ہے، لیکن لڑکے کے لواحقین کا موقف یہ ہے کہ ان کو اغوا کیا جاتا ہے بیریا ٹاؤن لاہور سے۔ یہ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں حقائق سامنے آئیں گے۔ بدقسمتی سے مقتول حسن سلیم اور اس کی زوجہ عائشہ تو منو مٹی تلے چلے گئے اور ان کے لیے معاملات، درد، تکلیف ختم ہو گیا، لیکن یہ بوڑھے ماں باپ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے، یہ ابھی بھی انصاف کے لیے اس درد، اس تکلیف کے ساتھ جوجھ رہے ہیں۔ انہیں کوئی اونٹ پہاڑ کوڑے نہیں چاہیے، ان کو صرف ایک چیز چاہیے جس کا نام ہے انصاف، اور انصاف احسان نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام۔ اماں اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے۔ آمین۔ اماں جی کی بنی؟ کوئی دشمنی سی، کوئی مخالفت سی، کوئی لین دین دا تنازع سی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کی سی پھر؟ بس یہ بچے ہوں، بس آپ ایج پسندگی کر لئی ہے۔ ہاں، پسند دی شادی کر لی جی منڈے تے کڑی نے؟ جی۔ تے کوئی رشتہ داری بھی سی پہلے؟ جان پہچان؟ اتنی رشتہ داری نہیں سی، بس تھوڑی بہت ہی سی۔ سلام دعا سی بڑیاں دی؟ جی۔ کیویں سی سلام دعا؟ پہلے نہیں، جس طرح میں کدی فوت کی ہوئی، کوئی کام ہویا تو گیا خوشی غمی تے؟ جی خوشی غمی تے، ویسے کو نہیں سی۔ پنڈ نیڑے نیڑے ہی نے؟ نہیں، دور ہے وہ۔ اچھا جی۔ کنا کو دور ہے؟ تو گھنٹہ سارا لگ جانا سے۔ ہاں جی۔ 3 کلومیٹر؟ پہاڑی علاقہ 3 کلومیٹر تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ اما منڈے نے کدی ماں پیو دے نال اے گل سانجی کیتی کہ مینوں فلاں چھور پسند ہے، فلاں کڑی پسند ہے تو میں نکاح کرنا چاہنا؟ نہیں، ایک دفعہ آکھیا سی سے، انا سی بھی شادی تو رشتہ منگو۔ پھر تو کیوں نہیں منگیا؟ منگیا اساں، پھر وہ آنے نہ سا دیتے یا رشتہ ماموں اس نے کی۔ انہوں نے کیا کہ اسی رشتہ آگے کیتا ہے؟ جی۔ تے رشتہ نہیں لبا؟ نہیں گئے سو رشتہ لین؟ جی، انہاں نبو گئے سن۔ اچھا جی۔ اے کنی چیر پہلے دی گل ہے؟ یہ میں شک ہے 2 مہینے پہلے نہیں ہے۔ 2 مہینے پہلے دی۔ تے کڑی پسند کردی سی منڈے نو، منڈا پسند کردا سی کڑی نو؟ زیادہ کڑی کرنی سی، ہوں۔ پھر نال مڑا بھی پھر دوئے یہ ہو گئے۔ پھر تے منڈے نو کڑی لے کے لاہور کیوں نس کے جانا پیا؟ ماں پیو سنا نہیں سننا مننے جی؟ کڑی نے ماں پیو جی آنے سن اساں رشتہ دیتے یا نہ دینے، اساں اتھے ہی دے ساں، پھر کڑی نے مرضی کون سی نہ ادھر تاں ہی گئی ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ لاہور کوئی رہندا سی عزیز رشتہ دار؟ نہیں، اساں کوئی بھی نہیں سی۔ کندے کول گئے سی لاہور؟ پتہ نہیں ہن، کوئی آپ پیچ کوئی ہے مڑے اما جنی دیر منڈا نسیا رہا اپنا، اللہ انہوں غریق رحمت کرے، تے کدی ماں نال گل ہوئی ٹیلی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ماں نے ظاہر ماما تو تے بال کوئی بھی نہیں، جدوں نہ گیا میں فون کیتا ہی کوئی نہیں سما بڑے۔ رسیا تے نہیں ہویا سی؟ جی۔ ناراض تے نہیں ہویا سی؟ نہیں، راز کو نہیں سی، راز کو نہیں سی۔ تے اما کنے مارے ہے گا؟ وہ نہیں، کڑی والے ہاں۔
ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਜੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਚ, ਜੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇਲਮ ਦੇ। ਜੀ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਜੇਲਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਹਾਵੇ ਦੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਨਕੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੰਦੀ ਵੇਸੇਦਾਰ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਗੈਰਤ ਅੰਮਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਗੈਰਤ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਨਕੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਸਾਂ ਤਰਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਸਾਂ ਕੀ ਮਾਂ ਅੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਮੁੰਡਾ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੌਥੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ? 22 ਸਾਲ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਖਾਬ ਵੇਖੇ ਸਾਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਬ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਰੋਣੀ ਆਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਅਸਾਨੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਇਧਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਉਧਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਸੋ? ਮਾਂ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? करना संग तो इंसाफ चाहिए। हाय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। आमीन। हाय साहब, सवाल कहानी बिल्कुल वही है, मैं कोई ज़्यादा सवाल नहीं कर पाऊंगा, जो बात करना चाहते हैं कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बोलसा सच बोलसा। बच्चा मेरा सी, उसने मर्जी सी शादी नहीं, शादी सी पिंड साढ़े तो दूर है 3 किलोमीटर बच्ची ना गाँव, कुड़ी दा गाँव, कुड़ी ना गाँव है सी। हाँ उत्थे इन्ना बच्चे नहीं गल कोई आपस विच होई, टेलीफोन ते सलाम दुआ होनी, सलाम दुआ दे पुरानी सलाम दुआ है। ये बच्चा साड़ा कम करना सी, मोटरां दी दुकान रखी हुई सी, वाशिंग मशीन मिज़ाइल मोटरां छोटरां ते ये सारी दुकान रखी हुई सी। ते उन्होंने घर गया कम करने दी, नवियां मोटरां उन्होंने 2 लाख आया, उन्होंने वाशिंग मशीनां ठीक करके आया। सच्ची गल है, वाशिंग मशीनां ठीक करके उन्हें वालिद इस को लिया हुआ अपने कार्ड बच्चे तो ते बच्चे को कार्ड लिया सा अपना, मिगी कार्ड अपना दे, जदों असांखे ज़रूरत होई असां तुहाडे नाल राबता करसां। ये पैसे भी तुगी जेहड़ी मोटर लवाई है इस नाल कोई टाइम तय होया सी, ऐसे टाइम विच असां देसां कोई नहीं दित्ते, उधार कीता सी सर। उदियों बाद वो बच्चा साड़ा उत्थों निकलिया ते रस्ते विच आए मैसेज आए, उस निक्की ने मैसेज इस तरह आए, मैं खुदा गवा बच्चे साढ़े वो बच्ची नहीं सी वेखी भी। एक सेकंड, यानी बच्चा गया, मुंडा गया, नाजरीन लड़का गया है मोटर ठीक करने के लिए। जी जी जी। वहां पर घर के मालिक ने कार्ड मांगा है कि नंबर देते जाओ, कोई इमरजेंसी हो, कोई जरूरत हो तो बजाय बंदा ढूंढने के तुम्हें टेलीफोन करके बुला लेंगे जी। लेकिन बच्चा अभी मैकेनिक दुकान पर वापस नहीं पहुंचा और रास्ते में ही उसको मैसेज आ जाता है, और ये मैसेज उस घर की खातून की तरफ से, उस घर की बच्ची की तरफ से जो अब रिश्ता इज़्दिवाज में बंधे हैं। कहानी का आगाज यहाँ से हुआ। अच्छा जी। इदियों बाद इन्हां बच्चियां नी आपे विच मुलाकात हुई। अच्छा जी, 10 मिनट हुई, आधा घंटा होया, उन्होंने घर तो बाहर। चाचा एक गल में सवाल करना चाहते थे, जरा मेरे लिए तो जो फरमाया जाए। मुंडा अपना क्या घर विच नहीं से? मुंडा थोड़ी गल नहीं सुनदा से? बच्चे नाल गल करने से बच्चा कहना सी अबू मैं कुछ ना करना, जदों मैं घरों कहना सा आना सी अबू मैं शादी तुम्हारे करसा, मैं शादी उन्होंने करसा, मैं अपना बच्चा जेड़ा हैगा अल्लाह उनकी कबर सुकून वाली करे ते बच्ची दी भी कबर सुकून वाली करे, माफ करे, आमीन। गैर शरई रिश्ते चाहे जी, कारोबार मुलाकातां कीतियां जी, प्यो ਲਈ अजियत बनाई जी, मां ਲਈ अजियत बनाई जी, पूरे खानदान टब्बर ਨੂੰ
ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਟੱਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਨਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਯਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਿਆ ਦੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਨਸ ਗਈ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਰੇ ਨੇ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ बैठी सी मैं इसकी ये गल कही है 9:30 हो गए नो इतनी देर हो गई है सैना में सुबह फजर वेला नमाज पढ़नी है चलो घर चलिए ये कहनी असन तू भी उठ खल मैं नहीं वेख्या असन उत्थे लेटिया सी मैं उसकी आख्या वो मामे ने घर लेटिया सी असन मैं उसकी आख्या असन पता चल के चलिए घर वो मेरे नाल चलिया वो भी चलिया बीवी मेरी भी असी घर आए हाँ असन अपने कमरे च अंदर पखा ला के सह गया असा बाहर लेट गया जिले सर टाइम होया 3 बजे ना मैं उठिया मैं आख्या वुजू बनासा तो जतनी नमाज पढ़सा दरवाज़ा खड़किया मैं जिला दरवाज़ा खोलिया तो आशा नी इस बच्ची नी वालदा ओए होए होए और भाई साढ़े घर आए मिगी कहनी है पापा असन किथे मैं क्या असन कहा लेटिया अंदर पखा लगे आवाज आवना मिगी असन अंदर लेटिया नहीं तको तो सही मैं अंदर गया पखा लगया लेकिन असन नहीं अंदर उन्हें जो कोई शोर शराबा बना सी भाग के चले गए मैं चला गया फजर नी नमाज पढ़ी नमाज पढ़ के मैं घर आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ मैनू नहीं वो बकौल उस मां ने आयशा दी वालदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ आशा ने वालदा ये गल दसी आ आशा भी घर नहीं है हाँ तो देखो ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो लग गया ना कि कुड़ी भी गायब तो मुंडा भी गायब मैं जनाब फजर नी नमाज पढ़ के जले मैं घर आया हाँ बाहर मोटरसाइकिल खलिया नाल कुहाड़ी टंगी हुई है हाँ मैं अंदर आया इस बच्ची ने दोए भाई साढ़े कार अंदर खले हुए हाँ मिगी कहने चाचा साढ़े कार जुलसो ए माड़े अब्बे नाल फोन ते गल करके नो इसने अब्बे फोन किया आना पैसे नहीं माड़े कार आ जासे हाँ मैं क्या आ जासा हाँ मैं क्या हो सकना अल्लाह से इधर करम कर छोड़ मैं क्या मैं आ जासा मैं उन्हें नाल बैठा मोटरसाइकिल ते हाँ मैं घर वाले किसी फर्द अपने की नहीं दसिया मैं उन्होंने घर चला गया खोट नहीं ना सी उन्होंने घर चला गया उन्हीं वालदा सी ते बच्ची नहीं ते वालद सी मेरे को उन्हें पूछया मैं उन्हें की एक ही गल कही है मैं क्या मैं वुजू चाह असा ना बच्चे नाल कोई राबता नहीं होया कोई पता नहीं असा की हाँ असा जिले ये आए न असा सारे नंबरों का राबता किया कोई नंबर नहीं लगना कोई साढ़े घर में कोई फर्द ही है या नहीं जिसको पूछया नहीं उन्हें आख्या कोई राबता नहीं ठीक है उन्हें क्या जी साढ़े घरों असा की गोलियां दे कहता है बच्ची चली गई गोलियां दे के नींद रही गोलियां दे के चली गई वल्लाह आलम सही क्या नहीं गलत क्या याद रखें ये इसका भूत जब सर चढ़ जाता है ना माँ माँ नहीं रहती बाप बाप नहीं रहता खानदान खानदान नहीं रहता अगर बच्ची घर गोलियां दे के जा रही है और बाप और माँ बाहर सेन में लेटे हुए और बेटा इधर से दाव लगा के निकल रहा है और पता है कि ये भूचाल आएगा हम गायब हैं ये कौन किसका सर ले जाए कोई खौफ नहीं है
یہ ہے عشق کا بھوت. मिगी अपने घर लै गए, मिगी अपने घर बैठक खिला के ते कहने थल्लै मकान है, बंद मकान है, उत्थै लै चलो उसकी. उत्थै मिगी लै के गए, आपो सारे मंजियां ते बह गए, मैं थल्लै फर्श ते बिठा दिता ने. सारियां वारी वारी उन्होंने घर वाले सारियां फर्द बड़ियां बड़ियां नाजायज गल्लां कीतियां मेरे नाल. मैं उन्हें की क्या सारियां गल्लां मिगी काबिले कबूल माड़े बच्चे काम कीता. मेरे बच्चे ने फोन आया ते मेरे बच्चे मेरे को उन्हें फोन कट के मतलब खो के कौन आया उत्थे बेटे दा? बेटे ने फोन केड़े ना आया जेड़ा फौज च है. उसकी जेल्लै पता लगा उस मेरे दा फोन किया, आना अबू कित्थे हो तुसां? मिगी तो हुण पता लगे. मैं कहा पुत्र मैं इत्थे ही हां, तू फिक्र ना कर, मिगी दसो तुसां कुत्थे. इन्हें मेरे को फोन खो के मैनू गाली कड़ियां. मेरे दामाद ने फोन आया, उसकी भी इन्हें गाली कड़ियां, फोन उन्हें आपो खो लिया. मैं उन्हें की क्या, मैं क्या मेरे नाल जो सलूक करने पे करो लेकिन गाली ना कढ़ो मिगी. उन्हें मेरे की नजायज गाली कट के पिस्टल उस बच्ची ने चाचे सामने मेरे कीता, मैं मार छोड़सा. ये दाड़ सदी रखी, जो कुछ सर उन्हें आख्या ठीक है. औलाद ने करा दिता चाचा, औलाद ने आखने रहूं. ये मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू है जिसमें बुजुर्ग ने पूरी आंखें बंद करके बात की. अभी तक जितनी गुफ्तगू की है उस बंदे ने आंख नहीं खोली है, आंखें बंद करके अपने आप को अंधेरे में गुम करके वो बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये तमाम चीजें उसके औलाद के जरिए उस तक पहुंची हैं. शरीफ आदमी के लिए गाली सुनना और फिर मजबूरन एक के बाद दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10वीं, 20वीं सुनना उसके लिए मरने का मकाम होता है. मैं हाथ जोड़ के हर औलाद से ये कह रहा हूं, हाथ जोड़ के ये कह रहा हूं कि अपने माँ बाप के सर में मट्टी मत डालें. आपके इश्क का भूत आज आपके सर पर नाच रहा है, कल ये भूत डायन बन के आपको हॉन्ट करेगा. आज आप अपने बुजुर्गों को ख्वार कराएंगे, कल फिर जब ये हॉन्ट करता भूत डायन के तौर पर आपके लिए अजियत बनेगा तो फिर आप इनके सर में क्या डालेंगे. आपके सामने रख रहे हैं. मेरे पास मजीद सवाल करने की हिम्मत नहीं है इनसे. मिलते हैं ब्रेक के बाद. मैकेनिक की जानिब से घर की मोटर ठीक करने से मुआशके का सिलसिला जारी होता है और ये मुआशका इस हद तक बढ़ता है कि दोनों खानदान कबीले रुकावट बनना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद छुपकर मुलाकातों का सिलसिला चल निकलता है. और जब पता चलता है तो लड़की की फैमिली की जानिब से लड़के पर हवाई फायरिंग भी की जाती है. लड़के के बाप, उसके खानदान, उसके कबीले को तकलीफ में मुब्तला करने की भी कोशिश की जाती है. दुरुस्त या गलत अंदाज में ये मामला 3 से 4 महीने तक प्रोलॉन्ग होता है. लेकिन फरीकैन की मोहब्बत का भूत ऐसा बेलगाम था कि टेलीफोन नामी बला के जरिए उनके रवाबित खत्म नहीं हुए. लड़की ऑलरेडी किसी की मंगेतर थी, लेकिन इसके बावजूद लड़की ने इसकी पींगे एक और अपने दूर के अजीज के साथ बढ़ानी पसंद की और ऑब्वियसली दूसरी जगह से भी वैसा ही रेसिप्रोकेट किया गया. और मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि लड़का और लड़की निकाह करने के बाद दोनों गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए गए हैं. मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मरहूम नौजवान के मामू मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. हजरत आप मामू हैं? जी मैं मामू. आप मुद्दई मुकदमा भी हैं जी, लेकिन एक मुकदमा इससे पहले भी है. जी आप लड़के के अगवा के चक्कर में मुद्दई बिल्कुल. लेकिन लड़की के अगवा का भी एक मुकदमा है. जी उसमें तो आपका खानदान मुल्जिम है. जी आपका मकतूल भांजा जो है वो मुल्जिम है. मुल्जिम है. उसके लिए हवाले से थोड़ी सी पहले बात कर लें. क्या रियलिटी है उस मुकदमे की? उस मुकदमे की यही रियलिटी है जी कि उन्होंने हमारा थाना डुमेली जो है इधर जाके रिपोर्ट दर्ज कराई कि हसन सलीम वाल्द मोहम्मद सलीम ने मेरी बेटी अगवा कर ली है. ठीक है. बस वही. आपका मौकफ ये है कि वो अगवा नहीं की थी, मर्जी से दोनों फरार हुए थे. और इन्होंने शादी कहाँ जाके की थी? लाहौर में शादी की है. लाहौर कौन अजीज बैठा था जिसके पास ये पनाह लेने गए थे? हमारे कोई अजीज नहीं है.
लड़की को अगवा करने से लेकर लड़के के और लड़की के मारे जाने तक कितने दिन का गैप है अंदर? 2 दिन, 3 दिन का। 2-3 दिन बस। इन 3 दिनों में आपका कोई राब्ता लड़के से हुआ? नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे पता चला कि लड़का लाहौर में? लड़का आप जब गए लाहौर, आपने लाहौर जाकर अगवा का मुकदमा दर्ज कराया, आपको किसने बताया? जो इसका भाई है सऊदीया में, उसने उस आपका भांजा? मेरा भांजा, ठीक वो है। इससे हसन से बड़ा है, ठीक है। उसे राब्ता किया कि अम्मा को अगवा कर लिया गया। किसने राब्ता किया? भाई से। भाई ने, छोटे भाई ने बड़े भाई से सऊदी अरब राब्ता किया कि हमें अगवा कर लिया गया। बस। अगवा में अगवा का टेलीफोन देते हैं? देते तो नहीं है। तो फिर ये कैसे राब्ता हो गया? बताइएगा जरा, दीजिएगा। ये अगवा में अगवा का टेलीफोन देते हैं कि सऊदी अरब अपने भाई से राब्ता करके उसको बता दें कि हम अगवा हो गए हैं। बात इस तरह ये कुछ क्या है मामला? कि हसन जो है ना, उसने जब निकाह कर लिया है तो उसने व्हाट्सएप पे अपना निकाह नामा बड़े भाई को भेजा है। ठीक है, अपने ही नंबर से? अपने ही नंबर से। ठीक है। ठीक है, उसने, उसके बड़े भाई ने जो हमें निकाह नामा भेजा इधर, फिर ठीक है। हमने जो है ना वो पुलिस स्टेशन जाके दिया है। हसन का और उसके बड़े भाई का राब्ता इस्तवार हुआ, लेकिन इस हद तक सिर्फ उसने वो भेजा उधर निकाह नामा, इससे अलावा कोई बात नहीं? इससे अलावा कोई बात नहीं, किसी किस्म की? किसी किस्म की। पक्की बात है? जी पक्की बात है। तो फिर जब आप यहाँ से जाते हैं कि हमारा हसन अगवा हो गया है, आपको कोई तिलिस्मी चिराग से आके पता चला? कैसे पता चला? ये जो निकाह नामा ना, ये उस अगवा से 1 दिन पहले का है। निकाह नामा चला गया, ठीक है। निकाह नामा पर एड्रेस मौजूद नहीं है। जी। आपको कैसे पता चला कि निकाह नामा भेजने के बाद हमारा लड़का अगवा हो गया है? सवाल ये है, सही है। ये कैसे पता चला? जब निकाह आपका नामा तो राब्ता ही किसी से नहीं है, ना ही लड़के ने किसी मैं से वही बता राब्ता रहा किया। हूँ, जब निकाह नामा उसने भेजा है, दूसरे दिन भाई ने फिर उससे राब्ता किया है, सऊदी अरब वाले? सऊदी अरब ने। उसने वॉइस मैसेज किया है हाँ। कि आप किधर हो? हाँ। उसने बताया कि हम लाहौर में हैं और लाहौर में ही हमने निकाह किया है। किस जगह पे, उसने ये भी बताया? नहीं, ये नहीं बताया। तो फिर भी आपको कैसे पता चला कि लड़का अगवा हो गया लाहौर से, और किस जगह मैं से? भी बता रहा हूँ ना, मैं भी बता रहा हूँ। वो उसमें बताया कि हम लाहौर में हैं। हाँ। तो उसका जो गवाह था अली और दूसरा जैन, दोनों, ये कौन है? ये दोनों शादी के गवाह हैं। कौन है ये? उधर लाहौर में ही होते हैं ये। रिश्तेदार है? नहीं, हमारे रिश्तेदार अजीज है? नहीं है। जानने वाले हैं? नहीं है। यानी कचहरी के गवाह हैं, जी जी जो कि गवाहियां भुगताने का काम हाँ जी, करते हैं। बिल्कुल। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, कि जी, ऐसा ही है कि नहीं है? जी जी, उनका आपके साथ, आपके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलेंगे। उस अली ने जो है ना, वो हमें बताया है कि इस तरह अली के पास आपका नंबर कहाँ से आया? वो हसन ने दिया था उससे राब्ता करने के लिए। कचहरी के गवाहों को अपने घर का नंबर दे रहा है एक बंदा, उसके भाई का लड़की नंबर भगा दिया। कर लाया। भाई का नंबर दिया उसने, भाई का नंबर दिया। अच्छा जी, फिर? जी, उसने राब्ते किया है कि कुछ लोग आए हैं और आपके भाई को साथ लेके गए हैं। कहाँ से? लाहौर से। किस जगह से? बैरिया टाउन। बैरिया टाउन। क्या कर रहा था आपका भाई? उधर रिहाइश इख्तियार की हुई थी, उसने फ्लैट लिया हुआ था। कितना अरसा पहले? 2-3 दिन, ये 20 के बाद ही लिया होगा। बैरिया टाउन में अगर एक फ्लैट लेना है भाई, तो उसके लिए आपको पहले एक ठीक ठाक अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी। जी जी। फिर कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आपका बेटा एक मोटर मैकेनिक था जी जी। और वो बैरिया टाउन में फ्लैट भी ले रहा है, कोई 2-2.5 लाख रुपया तो वहां पर जमा करवाया होगा? नहीं, कितना? ये तो नहीं पता मुझे, ये नहीं पता हमें कितना दिया है, कितना और नहीं दिया। किसी ने बगैर शनाख्त के, बगैर तस्दीक के उसको अपना फ्लैट दे दिया? ये तो वही बता सकते हैं, अली और जैन। लेकिन अली और जैन तो कचहरी के गवाह थे। उन्होंने आगे उसको फ्लैट भी लेके दिया है। ठीक है जी जी। भाई साहब, अब आप लाहौर चले गए जी जी। और वाहिद नंबर जो आपके पास है वो किसका है? मेरे पास नंबर नहीं था। तो आप किससे राब्ते में थे? राब्ते हम सीधे थाने में गए हैं। किस थाने में? क्या नाम है थाने? सुंदर। सुंदर थाना। आपको किसने बताया कि आपने सुंदर थाने जाना है? वो इधर जो अली का फोन जो आया था ना, हमारे भांजे ने इधर किया था। हाँ। उसने बताया था कि सुंदर थाने जाना है। जी। अब आगे चलते हैं जी। आप जाते हैं, आपको पता चला लड़का अगवा हो गया है, तो मर्डर का कैसे पता चला? मर्डर का हमने मोबाइल पे उसका तस्वीर देखा है, हसन का। कितनी देर बाद? अभी आप लाहौर ही थे? हम लाहौरी थे। हाँ। सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो नेट पे
मैं कॉल करने लगा तो नेट पे तस्वीर आई हुई थी। फिर किसी चैनल पे खबर चल रही होगी? नहीं, चैनल पे नहीं चल रही। व्हाट्सएप किसने किया था फिर आपको? मुझे वो तो वैसे ही अली, सुने हजरत, बुरा ना बनाइएगा। नहीं कोई ऐसी मैं इम्पोर्टेंट चीज समझना चाह रहा हूँ। अली लाहौर को जानता है, ठीक है। वो एक पैसे लेकर गवाहियां देकर जोड़ों को फैसिलिटेट करने वाला आदमी है। सही है। मेरे सामने ना वो माँ और बाप मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं, और इसी तरह दूसरी तरफ भी होंगे। जिनकी बेटी गई है, जिनका बेटा गया, दोनों ने अपना गवाया ना। मैं इस वजह समझना चाह रहा हूँ, बच्चे कत्ल हो रहे हैं सराय आलमगीर। सराय आलमगीर में आप किसी को नहीं जानते? नहीं जानते। आप जानते हैं या डुमेली में, या आप जानते हैं लाहौर में अली को? बस अली भी। सराय आलमगीर से आपको व्हाट्सएप किसने किया? नहीं, सराय आलमगीर से व्हाट्सएप तो नहीं किया ना। फिर कत्ल का कैसे आपको पता चला? कत्ल ना हमने फोटो दिया है, देखा। किसने भेजी? व्हाट्सएप ग्रुप में एक सेकंड सर, ग्रुप में हम जब फोटो देखा है ना, फिर मैंने इसको फोन किया है कि उधर सराय आलमगीर में 2 लाशें पड़ी हैं। हाँ। आप उधर जाएं, उनकी पहचान करें। ये उधर गए, इन्होंने पहचान की, इन्होंने बोला कि हमारी लाशें हैं ये। फिर हम लाहौर से इधर सराय आलमगीर आए। हाँ। THQ में। हाँ। उधर लाशें पड़ी थी। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बस यही किया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपका ने जो 365 पर्चा दर्ज कराया ना, वो लाहौर में है। हाँ। आप लाहौर ले जाएं, डेड बॉडी भी ले जाएं लाहौर। हाँ। और पर्चा भी उधर दर्ज होगा। यानी हवा में सारी कहानी चली। हवा में। फिर हम डेड एम्बुलेंस की। लेकिन आपका कत्ल जो है वो हुआ है सराय आलमगीर में। ये तो नया मुकदमा नहीं बनता? जी, ये मुकदमा सराय आलमगीर में होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बोला कि हम इधर इसका FIR नहीं काटेंगे। क्यों कि 365 जो आपने कराया है वो लाहौर में कराया है। ठीक है। हम इधर 302 क्यों काटें? आप ऐसा 302 का वाकया तो सराय आलमगीर वाकया तो सराय आलमगीर का है। हाँ। लेकिन उन्होंने बोला हम इधर कुछ नहीं कर सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, दीज आर द हार्श रियलिटीज। इनसे भी कोई सवाल हो सकता है, इनको भी बुरा लगा हो, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये काम रियासती इदारों का था। वो अभी तक अपने मुतल्लिका जगह पर पर्चा नहीं करवा सके सराय आलमगीर में। उनको लाहौर की ट्रक की बत्ती दिखाई जाती है, और की दिली दूरस्त वाली कहानी कि ये यहाँ जेलम से लाहौर, लाहौर से जेलम, मुकदमा तबाह। मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गैरत का जिन जो है वो जेलम में दंदनाने लगा है, और ये खूनी जिन है जो कि 2 जानें ले चुका है। ये जानें सराय आलमगीर के इलाके में ली गई हैं, और इसके लिए बाकायदा 3 शहर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। जेलम से लड़का और लड़की फरार होते हैं, लाहौर जाके निकाह करते हैं, लाहौर से किसी भी तरीके से उनको सराय आलमगीर तक लाया जाता है, और फिर उसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोनों फैमिलीज लड़का और लड़की की जेलम में मौजूद है, जो जेलम का इलाका है डुमेली। मेरे साथ मकामी सहाफी एहसन वहीद साहब मौजूद हैं। एहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। एहसन भाई, ये क्या हुआ है, ये क्या मामला है? देखिए, दोनों फरीकैन की अपनी अपनी रियलिटीज हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपके सामने क्या हक़ाइक़ है वो बताइए। इमरान भाई, मैं समझता हूँ कि इसमें जो रियासत है, हमारी रियासती इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो मुकामी पुलिस है, जब एक अगवा का मुकदमा दर्ज होता है, बदकिस्मती से जब उनको ये मालूम होता है कि किसी बड़े शहर या दूर दराज के शहर में जो है वो लड़के लड़की ने निकाह कर लिया है, तो अमूमन ये होता है कि तफ्तीशी जो है वो अपने वसाइल की का रोना होता है कि उसको लाहौर जाने के लिए, आने के लिए वो एक अजाब नज़र आ रहा होता है, तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेता या उस संगीनी को नहीं देखता कि ये 2 लड़का लड़की के हैं, खानदानों की दुश्मनी बन सकती है, तो मुझे इसमें किरदार अदा करना चाहिए। मेरी ज़ाती सोच के मुताबिक जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये केस जो था इसको बहुत लाइट अंदाज में लिया गया, जबकि इसका जो बैकग्राउंड है वो तफ्तीशी और मुतलका जो थाना था उसको इस बात का मद्देनजर रखना चाहिए था कि पहले फायरिंग भी हो चुकी है, 3 माह से ये मामला भी। देखें, सोर्स होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास, एजेंसियों के रिपोर्ट्स होती हैं, तो इस तरह
کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تفتیشی افیسر کو اس طرح کے سنگینی کے معاملات میں سیریس ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور اس کے پیچھے اس کی متعلقہ تھانے جہاں پر انہوں نے اگر نکاح کیا تھا تو متعلقہ تھانے تک اپروچ کرنی چاہیے تھا, اس کو لڑکے اور لڑکی کے ساتھ رابطے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, ان کو یہ احساس دلانا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے نکاح کر لیا تو آپ 164 کے بیان یہاں آ کر محفوظ ہاتھوں میں ہیں, ان کو تھوڑا سا ان کو کرنا چاہیے تھا. پھر دوسری بدقسمتی دیکھیں کہ جب لاہور سے میں FIR ہو رہی ہے, اب مجھے بتائیں کہ ایک تھانہ ڈمیلی میں جو فرسٹ جو پہلی یہاں پر مقدمہ درج ہوا ہے, اس کے بعد دوسرا مقدمہ لاہور میں درج ہو رہا ہے نکاح کے بعد. اب وہاں پر فیسلٹیٹر موجود تھے یا ان کا اگر وہ دوست تھا, حسن علی کے ساتھ رابطہ تھا, جو بھی تھا, وہ تو انویسٹیگیشن میں چیزیں آئیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی جب اغوا کی FIR ہوئی تھی, پولیس اگر وہاں سے CCTV کیمروں کی مدد سے, ڈیٹا لوکیشن کی مدد سے اگر یہ دیکھتی کہ یہ 2 جانیں ضائع ہو سکتی ہیں, 2 خاندانوں کی دشمنی بن سکتی ہے, اس پہ ہم ایفرٹ کریں, تو میرے خیال میں لاہور کی پولیس اگر چاہتی تو تب بھی وہ وہاں پر اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی. ادارے بری طریقے سے اس معاملے میں ناکام ہوئے ہیں, وہ چاہے جہلم کی پولیس ہو ڈومیلی کی یا پھر لاہور کی پولیس ہو, دونوں ناکام رہے, اور پھر ان کو سرائے عالمگیر میں بھی تحفظ نہیں مل سکا. لیکن ایک اور معاملہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو بحیثیت اس انڈو پاک کے معاشرے کی اگر بات کریں تو ہماری بیک بون ہوتا ہے. مقامی روایتی جو پنچایت ہوتی ہے, اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے کہ کسی بھی 2 خاندانوں کے درمیان اختلافی سچویشن ہو گئی ہے تو کوئی ڈومیلی میں کیا کوئی بڑا نہیں تھا, سب فوت ہو گئے تھے, سب قبروں میں چلے گئے تھے, سب منو مٹی کے نیچے چلے گئے تھے, کسی کو اتنا شعور نہیں آیا کہ یہ 2 خاندان ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور دونوں خاندانوں میں بے گناہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے بھاگ کر شادی کی وہ لاہور ہے یا کہیں اور ہیں, کسی بڑے نے ان کے درمیان مصالحت, ان کو وہ کہتے ہیں ٹھنڈی لاون دی, کوئی کوشش یہاں پہ نہیں کی گئی. عمران بھائی, اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بات ضرور کروں گا کہ آپ کو پتا ہوگا ریسنٹلی ابھی پہلے امن کمیٹیاں ہوتی تھی, وہ پھر مدھوم, وہ بھی سیاست کے نمبردار بنائے جاتے تھے, علاقے کے نمبرداروں کا بڑا کردار ہوتا تھا, وہ بھی اپنے کردار ان کے بھی مدھم ہو گئے ہیں. ابھی ایک پبلک لیزان کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ریسنٹلی بنائی گئی ہیں. جیسے ڈمیلی کے لیزان کمیٹی کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہاں پر بہت سے معززین جو ہیں علاقہ کے, جو معززین تو وہ شامل کیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ جو مقامی کمیٹیاں ہوتی ہیں, امن کمیٹی ہو, لیزان کمیٹی ہو یا نمبردار کے جو مقامی ہوتے ہیں, ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس سارے معاملے میں انہوں نے اپنا سٹارٹنگ میں کچھ نہ کچھ رول پلے کیا. یہاں پر پنچایت بھی ہوئی, پنچایت میں کوشش بھی کی گئی. یہ سارا معاملہ تب ہوا جب لڑکا اور لڑکی یہاں سے چلے گئے. اس کے بعد جب پولیس کیس یہ بنا, پولیس کے معاملات آئے, تو آپ کو پتا ہے یہ جو گاؤں کے معاملات ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی زیادہ تر یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم پولیس کیس میں جو ہے وہ خود انوالو نہ ہوں خود سے. دیکھیں, پولیس اگر کسی کو انوالو کرتی ہے وہ ایک اور عنصر ہوتا ہے. یہاں پر گاؤں کے لوکل لیول پر سب کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں, غمی خوشی ہوتی ہے, تو کوئی بھی لوگ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آج خود سے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں سب آپ بچاندے رہے, اور دونوں خاندان جو ہیں وہ ہیڈ ٹو ہیڈ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے, ان کو ہر شر سے پناہ عطا فرمائے, جو جا چکے ان کے لیے مغفرت کا معاملہ فرمائے, اور اس دشمنی کے جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرے. ایک جانب ریاستی ادارے پولیس ناکام ہوئی ہے, دوسری جانب ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہوا ہے. سوشل فیبرک ریسپونڈ کرنے میں تاخیر کا شکار ہوا ہے, اور لوکلی ڈومیلی کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان فریقین کو, ان خاندانوں کو محفوظ رکھنے میں ابھی بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں خاندان ایک بڑا نقصان اٹھا سکے ہیں. دستبستہ درخواست ان نوجوانوں سے جو سمجھتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ جوان ہو رہے ہیں, بھائی یہ جتنے سفید بالوں والے ہیں, جتنے قبروں میں منو مٹی کے نیچے موجود ہیں, یہ بھی کبھی جوان ہوئے تھے. اور جو گمان خیالات آپ آج رکھتے ہیں یہ آپ سے شاید دہائیاں پہلے, صدیاں پہلے, جتنی پرانی انسانی تاریخ ہے, یہ سب ایک ہی راستے سے گزر کے گئے ہوئے ہیں. سو اپنے عشق محبت کے بھوت کو لگام دیں اور اس کو شرع کے تابع کریں, کیونکہ اگر یہ شرع کے تابع نہیں ہوگا تو یہ بدبختی لائے گا. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.